السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ حیدرآباد میں ہیں اور ہمارے رفقاء کرام جو سفر میں ہیں، حضرت مولانا مفتی و قاضی جامع مسجد ممبئی حضرت مفتی اشفاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نوجوان صالح عالم دین جن سے اللہ بے شمار کام لے رہے ہیں، اور اسی طرح مولانا شاہد صاحب الناصری دامت برکاتہم العالیہ، صفا بیت المال حیدرآباد۔ اس نام سے سبھی واقف ہیں۔ حیدرآباد والوں کے لیے یہ نام تو بالکل بھی پرانا نہیں ہے، اور بہت ہی نرالا کام جو صفا بیت المال کا ہے، حضرت مولانا غیاث الدین صاحب رشادی اور ان کے فرزند مفتی عبد المہیمن اطہر، ان کی فیملی، اسی طریقے سے حضرت کے ساتھ مکمل ایک عملہ ہے تقریباً 350 افراد پر مشتمل۔ بہت عمدہ کام ہو رہا ہے۔ گزشتہ کل بھی ہم نے اس کام کو دیکھا، اور آج کا پورا دن بھی الحمدللہ ہم مصروف کار رہیں گے۔ صفا بیت المال کے تعلق سے حضرت مفتی صاحب سے بھی اب چند الفاظ سن لیں، شارٹ بٹ سویٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی بہترین، منظم، مرتب کام، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، یعنی اتنا بڑا کام ہے، 350 کا عملہ ہے، اور کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ، فائل کی مینٹیننگ کے ساتھ پورے شہر میں گاڑیاں گھومتی ہیں، اور وہ ہماری بمبئی کی زبان میں بھنگار جمع کرتی ہیں، اور پھر اس کو ایک سلیقے اور قرینے سے جو نئی چیزیں بن سکتی ہے وہ بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مراکز نسواں ہیں جس میں عورتوں کے تربیت کا بہت زبردست نظام ہے، گلیوں میں، کوچوں میں، جھگیوں میں، جھوپڑیوں میں۔ پھر منبر و محراب فاؤنڈیشن ہے جہاں سے علماء کرام، مفتیان نظام کے لیے جو ہے خطبے تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر درس قرآن، روزانہ ایک درس، اس طرح 2000 دروس مکمل ہوئے ماشاءاللہ۔ کئی کتابوں کے مصنف 100 سے زیادہ عنوانوں پر لکھ چکے ہیں۔ تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی فضل سے، اپنی خاص قدرت کاملہ سے ان سے کام لیتے ہیں۔ اس کا ایک مظہر اور نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو خوب قبول فرمائے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، یہ ہمارے مفتی صاحب نے آپ کے سامنے کارگزاری پیش کی۔ اب حضرت مولانا شاہد صاحب الناصری سے بھی چند الفاظ آپ سن لیں گے، کیونکہ گزشتہ کل حضرت کی ایک ویڈیو بن چکی ہے، وہ انشاءاللہ منظر عام پر آئے گی۔ پھر بھی اسی ویڈیو میں حضرت سے بھی 1-2 منٹ کا انٹرویو لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ یہ ہے کہ حیدرآباد میں صفا بیت المال کے بانی حضرت مولانا غیاث الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم کی جو سرگرمیاں ہیں وہ انتہائی لائق تحسین اور قابل تقلید ہیں، اور اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص سارے شہر کو آباد کر گیا۔ تنہا اس شخص نے جو کام شروع کیا ہے وہ بے مثال کارنامہ ہے، اور یہ ان کا تجدیدی کارنامہ ہے۔ اللہ پاک ہر زمانے میں مجددین کو اور مصلحین کو پیدا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے جن شعبوں میں کام کرنا شروع کیا ہے، ان شعبوں میں یہ تجدید دین کا کام ہے کہ ملت کی ہمہ جہت فلاح و بہبودی کے لیے جس خلوص کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا ہے وہ واقعتاً قابل تبریک ہے، قابل دعا ہے، قابل تقلید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر کے کاموں کی توفیق عنایت فرمائے، اور خیر کے کاموں کی تقلید کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ جی خوش ہوا، اور جتنی تعریف کی جائے، جتنی دعائیں دی جائیں مولانا غیاث الدین رشادی صاحب کو کم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حسن عمل کی توفیق سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔ در حقیقت
मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर राह रो मिलते गए कारवां बनता गया। कुछ ऐसे ही ये काम हैदराबाद का है। और हज़रत मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब रशादी से अल्हम्दुलिल्लाह हम तो तकरीबन 10 से 15 साल से वाकिफ़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत से राब्ते में हैं। बेशुमार काम होते रहते हैं। अल्लाह नज़र बस से बचाए इस पूरे स्टाफ को। अल्लाह बेशुमार काम ले, बेशुमार काम हो रहे हैं। मकातिब, मदारिस, मसाजिद, खानखाई निज़ाम और इसी तरीके से मेंबर व महराब के ज़रिए से उलमाए दीन की खिदमत हैं। मस्तूरात के मकातिब का नज़्म है और इसी तरीके से बेवा मुतल्लक़ाओं के लिए राशन तक़सीम और किट्स का भी काम होता है। आनन फानन हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी कोई मसाइल होते हैं तो सफ़ा बैतुल माल सफ़े अव्वल में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खड़ा रहता है और बिल्कुल लिल्लाह फिल्लाह ही काम हो रहे हैं। और मैं यूँ समझता हूँ कि हमने जो अमलाक और स्टाफ को काम करते हुए देखा है, इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है दयानतदारी शफ़ाफ़ियत के साथ में काम हो रहे हैं। और तकरीबन 350 अफराद के घर चूल्हा जल रहा है। तनख्वाहें भी मेयारी हैं। काम का सिस्टमेटिक निज़ाम है। फ़ाइलों में भी होता है, कंप्यूटर भी होता है और जहाँ चाहे बैठ कर के आप इस काम को चेक कर लें। ऑडिट का भी बड़ा उम्दा निज़ाम है। आमद और ख़र्च की भी तरतीब बहुत शफ़ाफ़ियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह देखने मिली। और इस नाचीज़ ने छोटी सी उम्र में कई मकामात पर सफ़र किया है। ये बंदा अब्दुल वाजिद अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के कहने में ज़र्रा बराबर भी ना तज़ब्ज़ुब रखता है और ना कोई डाउट हमें है। बिल्कुल अल्लाह की ज़ात को हाजिर नाज़िर रख कर के ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये पहली ऐसी तंजीम हमने देखी है जिसका इस कदर मेयारी काम और मेयारी निज़ाम है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का ज़ोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का ज़ोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। इस वक्त हिंदुस्तान में बेशुमार तंजीमें हैं जो खिदमत खल्क़ के नाम से उठती हैं लेकिन खिदमत हो नहीं पाती हैं। बाज़ाब्ता यहाँ शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए काम किया गया है। अक़लें तो हैरान हो जाती हैं। और ये हमारा जो मैसेज है ये काम करने वालों के लिए है, काम करने वालों के लिए जिनके दिल बिल्कुल खुले हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मौलाना को एक अजीब वस्फ़ अता फरमाया है, उसाअत क़ल्बी, उसाअत ज़र्फ़ी, उसाअत नज़री, उसाअत फ़िक्री। और एक प्यारा जुमला अक्सर आपकी ज़बान से निकलते रहता है कि हमें काम इंसानियत की बुनियाद पर करना है, मसलक की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर। और यही है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रुपया। इंसानियत का दर्द ही होना चाहिए। अल्लाह ताला हज़रत को मकबूलियत से नवाजे और इस काम को कबूल फरमावे और हम सब को यहाँ से कुछ ले कर के जाने की और फिर उस पर अमल पर अपने अपने इलाक़े में काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जहाँ जहाँ तक हमारा ये वीडियो जा रहा है और जो जो अफराद इसको सुन रहे हैं, कोशिश करें क़रिया क़रिया, हर तालुक़ा, ज़िला, सूबा, जिस तरह से हज़रत का यहाँ का एक निज़ाम है, हम इसको आइडियल बनाएं। सफ़ा बैतुल माल को आइडियल बनाकर अपनी अपनी तंजीमों के तहत भले काम कर लें, लेकिन काम पहले सीखें। हिंदुस्तान की बड़ी सी बड़ी तंजीम का भी आप काम देख लीजिए। अगर इसमें किसी किस्म का गुलू हो तो आप हमें बिल्कुल बताइए। हिंदुस्तान की बड़ी सी बड़ी तंजीम जो यकसुई के साथ खिदमत खल्क़ कर रही हो और इन तमाम शोबाजात को सामने रखते हुए, जैसे हमारे मुफ्ती अशफाक साहब ने कहा कि इनका एक निज़ाम है भंगार जमा करना। रोज़ाना 10 गाड़ियाँ हैदराबाद में चक्कर गश्त लगाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल की बेशुमार ब्रांचेस हिंदुस्तान में अब खुल रही हैं और सब काम हो रहा है। उन सब का निज़ाम भी यहीं से चलता है। उन सब को हिसाब यहाँ देना होगा, आमद ख़र्च की रिपोर्ट देनी होगी। और हुकूमत हिंद भी इस काम से आज खुश है और इंशाअल्लाह और भी होगी। हम तो यही दुआ करेंगे, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, बुरी नज़र से परिंदे का पर न जल जाए। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, हासिदीन से बचाए, शरीरों से बचाए, फितनों से बचाए। और नामुमन कभी कभी अच्छे काम हसद की नज़र, फितनों की नज़र हो जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि और हज़रत ने काम का जो निज़ाम ऐसा सेटअप, ऐसा तय कर दिया, ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि ग़ियासुद्दीन रशादी जब तक के है तब तक तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसके बाद भी उम्दा ही चलेगा, क्योंकि नीयत हज़रत की बड़ी पाक है, बहुत करीब से देखा है। बस हम तो समझते हैं कि काबिल तक़लीद ये काम है
اور ہمیں اس کی تقلید کرنی بھی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی عبدالواجد لاتور، دعاؤں کا طالب. السلام علیکم.